Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों गुड इवनिंग। Uh, I was thinking about sharing about being filled with the Holy Spirit. और आज मैं सोच रहा था कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, भरना, इस विषय में मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। One promise which is repeated in all the four Gospels is Jesus will baptize us with the Holy Spirit. एक वायदा जो हम चारों सुसमाचारों में दोहराया हुआ पाते हैं वो है कि यीशु मसीह हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करेगा। So this is what is the most important thing in the new covenant. और नई वाचा के अंदर ये एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। If I have not experienced the real power of the Holy Spirit in my life, I have not started the new covenant life. अगर मैंने पवित्र आत्मा के सच्ची सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं उसका अनुभव किया है या नहीं चखा है तो मैंने इस नई वाचा के जीवन का आरंभ ही नहीं किया है। So there are two groups normally we see in Christendom. और मसीही जगत में हम आम तौर पर दो अलग अलग गटों को या विभागों को देखते हैं। We see a group of people who have made Holy Spirit an emotional experience and an emotional excitement, and they look for experiences. और हम लोगों के एक ऐसे झुंड को देखते हैं जिनने पवित्र आत्मा के विषय के सारी चीजों को सिर्फ उत्साह से भरे हुए कुछ अनुभवों तक ही सीमित रखा है। And there are other group of people who have made baptism in the Holy Spirit a theological thing, where they say that we have already received it when we are born again, and we don't have to seek for it. और एक दूसरा झुंड ऐसा है जिन्होंने पवित्र आत्मा के विषय को सिर्फ एक बुद्धि से सोचने वाली चीज को रखा है और वो कहते हैं कि हमने पहले ही पवित्र आत्मा को पा लिया है इसलिए हमें आज उसको मांगने की जरूरत नहीं। So in both these groups, what the devil has achieved is to take them away from the real power of the Holy Spirit. इन दोनों झुंडों के साथ शैतान ने जो चीज की है वो ये है कि वो आज पवित्र आत्मा के वास्तविक सामर्थ्य को नहीं जानते। We don't have to look at others, but we have to look into our lives about where we are. और हमें दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप के जीवन को देखना है कि हम कहाँ हैं। So just check our lives. When was the last time we really sought God for to be filled with the Holy Spirit? और हम अपने जीवन को जांच के देख सकते हैं वो आखिरी समय कब था जब हमने सचमुच परमेश्वर की खोज की थी कि वो पवित्र आत्मा से हमें भरे। Or are we any satisfied with just some theological explanation or some emotional things which we have in our lives? या किसी बौद्धिक उसके स्पष्टीकरण से या कोई तर्क से ही हम आज हमने हम उससे सेटिस्फाइड है या किसी अनुभव से हम आज तृप्त है। See, sometimes we don't have a thirst because we think that the life which I now live is okay. और कई बार हमारे पास ये प्यास नहीं होती क्योंकि हम सोचते हैं जो जीवन हम अभी जी रहे हैं वही ठीक है। But when we read the Word of God and we understand that Jesus did not come to give us just an externally good life, पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस वजह से इस संसार में नहीं आया ताकि वो बाहरी रूप से हमें एक अच्छा जीवन दे सके। Jesus said to the Pharisees in Matthew chapter 23, verse 25, यीशु मसीह ने फरीसियों को मत्ती 23 उसके 25 वचन में कहा, He said, "Woe to you, scribes and Pharisees, for you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence." हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। Then Jesus said, "You blind Pharisees, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may be clean also." और अगले वचन में यीशु ने कहा, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। Then Jesus went on to say that you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead man's bones and all uncleanness. और आगे यीशु ने कहा, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे है। So you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness.
इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। So let us see if our life can be anywhere close to what Jesus is describing here. और आइए हम इस बात को जांच कर देखें, क्या हमारा जीवन इस वर्णन से मेल खाता है, Where we appear good by acting holy before people and in the church. जहां हम लोगों के सामने तो अच्छे और भले दिखाई देते हैं, क्योंकि हम कलीसिया के लोगों के सामने पवित्र होने का दिखावा करते हैं, But our thought life and our intentions and our motives and in the place of work or in the family, it is like opening the tomb and seeing all the dead man's bones. या हमारा विचार करने का जो जीवन है, या हमारे भीतर के इरादे और हमारे उद्देश्य, या हमारा काम का जीवन या परिवार का जीवन, ये उस कब्र खोलने के समान है जहां हम अंदर सिर्फ उन हड्डियों को देख सकते हैं। There is a phrase in English which says skeletons in the cupboard. और इंग्लिश में एक मुहावरा ऐसा है कि जो अलमारी होती है उसके अंदर के जो हड्डियां होते हैं, That means there are a lot of things hidden in my life which nobody knows, which I have kept safely in a cupboard, which I hope that nobody will find out. इसका मतलब मेरे जीवन में ऐसे कई छिपी हुई चीजें हैं जो मैंने अलमारी में बंद करके रखे हैं ताकि कोई भी उन्हें देख न पाए। And I'm happy. It's not that it might be there, such situation may be there in our life, but are we happy with such a state of life? ऐसा नहीं कि ऐसी ही हमारे जीवन की परिस्थिति हो, पर क्या हम ऐसे परिस्थिति के साथ खुश है, संतुष्ट है? If we are happy because people think good of me or elders think good of me, then God cannot work in our lives. अगर हम इस बात से खुश है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या कलीसिया के अगुवे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। Only when I am really interested in what God thinks of me, then I will really seek for the Holy Spirit. जब मैं सिर्फ इसी बात में दिलचस्पी रखता हूं कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, उसके बाद ही मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भरे। See, when we read the Sermon on the Mount in Matthew 5, Jesus always spoke about sin in the heart. जब हम पहाड़ी उपदेश को मत्ती उसके 5 के अध्याय में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने हर बार हृदय के अंदर होने वाले पाप के बारे में ही कहा। So we need to check how is our attitude to sin when I sin in my heart. और इसलिए हमें हर समय इस बात को जांचते रहना है, जब मैं अपने हृदय के अंदर कोई पाप करता हूं, फिर मैं पाप की तरफ किस नजर से देखता हूं। So for example, if I get angry in my heart, do I grieve over it or am I sorrowful over it? उदाहरण स्वरूप, अगर मैं अपने हृदय के अंदर किसी व्यक्ति पर गुस्सा करता हूं, क्या मैं तभी अपने पाप के विषय में विलाप करता हूं, या मुझे उसके विषय में मैं दुखी होता हूं? It does not come in words or action, but it just come in my heart. At that time, if I am concerned about it, that shows that I really fear God. अब वो शायद मेरे शब्दों में से प्रकट नहीं हुआ, मेरे कामों से प्रकट नहीं हुआ, पर जब मेरे हृदय में आने के बाद भी मैं उसको गंभीरता से लेता हूं, वो इस बात को दर्शाता है कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूं। So maybe a lustful thought just entered my mind. I allowed it for just 1 second. शायद एक लालसा का एक विचार बस एक क्षण के लिए मेरे मन में आया और मैंने उसको अंदर एक क्षण के लिए आने की अनुमति दी। As soon as I become aware of it, do I say it's okay or do I repent of it? जैसे ही मुझे उस बात की जानकारी होती है, क्या मैं उसको ऐसे ही छोड़ता हूँ या मैं तुरंत उसके लिए मन फिराता हूँ। How sensitive we are to sin, that brings us to a place where we come to God with real need. और इसलिए पाप के प्रति हम जितने संवेदनशील होते जाते हैं, वही बात हमें परमेश्वर के सामने एक जरूरत के स्थान पर लाकर छोड़ती है। However, if we are like the Pharisees, where we just want to be a whitewashed tomb, we just want to there is a wound inside, we just want to put some plaster or something to cover it, and we just want to hide it. इसके बजाय अगर हम सिर्फ फरीसी होने से ही संतुष्ट है, इसका मतलब हम बाहर से अच्छा होना चाहते हैं, जबकि अंदर कोई अगर घाव भी हो जाए तो हम बस बाहर उसको चूना लगाकर उसको ढक देते हैं। See, one of the purpose for filling with the Holy Spirit is to make us free from inside our hearts. परमेश्वर का पवित्र आत्मा से हमें भरने का एक उद्देश्य ये है ताकि हम अपने हृदय के अंदर भी उस आजादी को महसूस कर सकें। See, in Matthew chapter 3 verse 10, Jesus says the axe is laid to the root of the trees.
और मत्ती 3:10 में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। So there Jesus was saying about the I think John was saying of the baptism in the Holy Spirit. और यहाँ यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में यह वर्णन करता है। So the baptism in the Holy Spirit has come to lay the axe to the root of the problem. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस वजह से हमारा होता है ताकि हमारी समस्या की जो जड़ है वहां से हमारा छुटकारा हो सके। So in Romans chapter 8 verse 23, Paul was also speaking about the inward sin which was there in his life. और रोमियो 8:23 में पौलुस भी उसके जीवन के भीतरी पाप के विषय में बता रहा था। We read there, he says, I see a different law in the members of the body, waging war against the law of my mind, making me a prisoner of the law of sin which is in my members. 7:23 रोमियो 7:23 में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। So here he is not talking about any external sin he is doing. और यहाँ पौलुस किसी भी भीतरी पाप के विषय में नहीं बता रहा। He is talking about sin in his inner parts, inward sin. और उसके जीवन के अंदरूनी भागों में जो पाप है उसके विषय में वो कह रहा है। He recognized that he was a slave inside his heart. और उसने इस बात को समझ लिया कि वो उसके जीवन के उसके हृदय के अंदर एक गुलाम है। He was not satisfied that I am living a decent life outside. वो इस बात से संतुष्ट नहीं था कि मैं बाहरी तौर पर एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। That is why he could have a cry in his heart. In verse 24 we read that he says, wretched man that I am. और इसी वजह से उसके हृदय में ये पुकार थी जिसको हम वचन 24 में पढ़ते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। So have we come to that place where we have a cry when we see impurity in our thoughts? तो क्या हम इस जगह पर आए हैं कि जब कभी हम अपने विचार में किसी अशुद्ध बात को देखते हैं तो हम भी अपने आप को इस अभागापन महसूस करते हैं। Some unloving attitude in our motives and intentions. या हमारे इरादों में या उद्देश्यों में कोई प्रेम रहित या बिना प्रेम के चीज को हम देखते हैं। So when we see this, we need to ask God to give us this real sorrow in our hearts. और जब कभी हम इन बातों को देखते हैं तो हमें परमेश्वर से मांगना है कि इन चीजों को देखकर हमें सही मायने में वो दुख महसूस हो, To see sin as exceedingly sinful. ताकि हम पाप को और भी बढ़कर उसका पापीपन देख सके। Before we can long for being filled with the Holy Spirit, I need to see sin as sin. पवित्र आत्मा से भरने की लालसा रखने से भी पहले पाप को सही मायने में पाप मुझे देखना जरूरी है। Like lusting with my eyes, I have to see like committing adultery. अपने आंखों से लालसा करने या वासना करने को मुझे व्यभिचार के समान देखना है। So when I begin to realize that, that is the only way I can come seriously before God. जब मैं इस चीज को इस प्रकार से देखता हूं तभी मैं गंभीरता से परमेश्वर के सामने आता हूं। So Paul, who knew that, he came to a freedom which he could say in Romans chapter 8 verse 2, 3 and 4. और क्योंकि पौलुस ने इस प्रकार से इन चीजों को देखा, इसलिए पौलुस एक ऐसे आजादी तक आ पहुंचा जो रोमियो 8 उसके 2, 3 और 4 में लिखी है। He says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. और वो कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। So what I could not do or what my efforts could not do, God did. इसका मतलब जो मैं नहीं कर सका, मेरे यत्नों या प्रयत्नों से जिसको मैं नहीं कर सका, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। And it says, sending his own son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. और लिखा है अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। He condemned sin in the flesh so that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के पूरी हो जाए। That means when Jesus died on the cross, he took my sin and he nailed it to the cross. इसका मतलब जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, उसने मेरा पाप लेकर उस क्रूस को उसने उसको क्रूसित किया।
So that means the power of sin over me has been broken on the cross. इसका मतलब उस क्रूस पर मेरे ऊपर जो पाप का सामर्थ्य है वो टूट जाता है उस क्रूस पर। So that is one truth which I accept by faith. और ये एक सत्य है जिसको हम विश्वास से उसका स्वीकार करते हैं। And second thing we see here is who do not walk according to the flesh but according to the spirit. और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। So both these things, when it goes together, we experience victory in our life. और जब ये दोनों बातें एक साथ होकर चलती है तब हम अपने जीवन में उस विजय का अनुभव करते हैं। One which Jesus has done in the past, एक जिसको यीशु मसीह ने पहले से ही किया है, and second is today, Holy Spirit helping us to actually fulfill that in our lives. और दूसरा मतलब आज पवित्र आत्मा इसको हमारे जीवन में पूरा करने की हमारी सहायता करता है। So that is one thing which Holy Spirit has come to do in our lives, is to free us from the power of sin. और ये एक बात है जो पवित्र आत्मा जिसके लिए आया है वो है पाप के सामर्थ्य से हमें छुटकारा देने के लिए। And the second thing is to help us to live in the presence of God. और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में जी सके। So when we read in John 14, 15 and 16, Jesus very often mentioned about the Holy Spirit. और जब हम यूहन्ना उसके 14, 15 और 16 अध्यायों को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कई बार पवित्र आत्मा के बारे में बताया। So the one purpose which Jesus mentioned is that he wants to be with us. और एक उद्देश्य इस चीज का जो यीशु ने कहा वो ये था कि वो हमारे साथ होना चाहता है। So in John 14, 16, he said, I will give you another helper that he may be with you forever. और इसलिए यूहन्ना 14 उसके 16 में वो कहता है मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। So that is the presence of God will be there with me throughout the day. इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति पूरे दिन भर मेरे साथ होती है। Not just when I meet people or when I meet some believers or when I'm in the church or singing songs, but when I'm working, when I'm doing my secular job or whatever I'm doing, I have the Holy Spirit with me all the time. सिर्फ तब नहीं जब मैं लोगों से मिलता हूँ या विश्वासियों से मिलता हूँ या कलीसिया में गीतों को गाता हूँ, बल्कि हर समय शायद मैं अपना काम कर रहा हूँ या किसी भी और समय में परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। So when we increasingly know that God is with us, that will help us to be aware of His presence and to live in His presence. और जब इस बात को अधिक रूप से हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है तो उसके उपस्थिति की हम अनुभव कर सकेंगे। And we will be able to hear His voice not just in meetings but throughout the day. और फिर हम उसकी आवाज सिर्फ सभाओं में ही नहीं बल्कि दिन भर हम उसकी वाणी सुनने पाएंगे। Our ears will be open to what He is talking to us. हमारे कान इस प्रति खुल जाएंगे कि वो हमसे क्या कह रहा है। Not just in the 5 minutes in the morning I think about Him and then rest of the day I forget. सिर्फ सुबह के वो 5 मिनट नहीं जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ और फिर दिन भर में उसको भूल जाता हूँ। But throughout the day we can have the ears tuned to what God wants to speak to me. बल्कि दिन भर हमारे कान इस बात पर लगे रह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, हमें यह सुनना है। And that is why it says that those who are led by the Spirit of God, those are the sons of God. और इसलिए ऐसा कहा है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। The Holy Spirit can warn us before the sin comes, not after the sin. और पवित्र आत्मा पाप आने से पहले ही हमें चेतावनी दे सकता है, पाप करने के बाद नहीं। For example, if I'm sitting in a house, the Holy Spirit can tell me to get up now because if you sit more time, you will gossip. उदाहरण स्वरूप अगर मैं किसी घर में बैठा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे इस बात को अपने हृदय में कह सकता है कि अभी यहाँ से उठकर चले जाओ, क्योंकि अगर मैं और समय वहां रुका तो मैं लोगों की चुगली करूंगा या निंदा करूंगा। Or when I'm watching something on the YouTube, Holy Spirit can tell me to stop it now or you will waste a lot of time. या जब मैं YouTube पे कुछ बातों को देख रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे इस चेतावनी को दे सकता है कि तू अभी रुक जा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू काफी समय अपना व्यर्थ गवाएगा। Or when I'm going to speak a word, the Holy Spirit can tell me, don't speak that word, just be silent. या जब मैं किसी शब्दों को कहने ही वाला हूं, पवित्र आत्मा कह सकता है कि कुछ मत कहना, सिर्फ शांत रहना। But I need to be willing to obey His word. पर मुझे इस बात की इच्छा होनी चाहिए कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं। That involves denying my will
and listening to his voice. अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप का इनकार करके उसकी वाणी, उसकी आवाज को सुनना होगा। The Holy Spirit will give me the power, but I need to yield myself. पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ जरूर देगा, पर मुझे अपने आप का समर्पण करने की जरूरत है। It says, by the Holy Spirit put to death, by the Spirit put to death the deeds of your body. और ऐसा लिखा है कि आत्मा के द्वारा अपने देह की क्रियाओं को हमें मारना है। And second thing, which the one more thing which the Holy Spirit does in our lives is it helps us to know Jesus more. और दूसरी एक बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है वो ये है कि वो हमारी सहायता करता है कि हम यीशु मसीह को और अधिक और नजदीक से जानें। I'll just mention few verses which you can check later. मैं It's from कुछ John, yeah. मैं कुछ वचनों को बताता हूँ जिनको आप बाद में पढ़ सकते हो। In John 14:21, वो है यूहन्ना 14 उसका 21, John 15:26 and 27, यूहन्ना 15 उसका 26 और 27, John 16:14. और यूहन्ना उसका 16 और 14। In all these places, it shows us, it tells us that Holy Spirit helps us to know Jesus in a personal way. इन सारे जगहों में हम यही देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जान सकते हैं। We know of his life in different situations in our life. और उसके जीवन के बारे में हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में हम जान सकते हैं। In 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10, it says, God reveals the depths of God to us through the Holy Spirit. और पहला कुरिन्ती उसका दूसरा अध्याय और 9 और 10 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसकी जो गुप्त बातें हैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। The word used in John is disclosing something. और यूहन्ना में जो लिखा है, जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है जो छिपी हुई बातें हैं उनको प्रकट करना। The disclose means something which I cannot see, God reveals it to me. प्रकट करने का अर्थ ये है कि जिन बातों को मैं नहीं जानता उन बातों को प्रभु मुझे स्पष्ट करता है या प्रकट करता है। So, like he shows me the purity of Jesus. इसका मतलब ये वो मुझे यीशु मसीह की शुद्धता या पवित्रता को दिखाता है। In 2 Corinthians chapter 3, 17 and 18, it says that the Holy Spirit helps us to see the image of Christ. और दूसरा कुरिन्ती उसका तीसरा अध्याय और 17 और 18 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की जो उसका चेहरा है या प्रताप है उसको वो दिखाता है। And it transforms us to the same image. और उसी रूप में वो हमें अंश अंश करके बदलता रहता है। From one degree of glory to another. एक महिमा से महिमा में। So, for example, at one time we will be struggling to overcome the lust of the eyes. इसका मतलब शायद एक समय हम अपने आंखों की जो वासना है उस पर जय पाने में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। And Holy Spirit shows us the purity of Jesus in the way he spoke to women in Samaria. और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की शुद्धता को दिखाता है जब वो उस शमरोनी स्त्री से बात कर रहा था। And he also spoke to the adulterous woman who was caught in adultery. और उसने जब उस स्त्री से बात की जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। All the sinful women who sat at the feet of Jesus and was wiping his feet with their hair. वो सारी पापी जो स्त्री थी जो यीशु मसीह के पांव में बैठकर अपने आंसुओं से उसके पैरों को पोंछते थे। And more we transform our mind, and more Holy Spirit reveals the life of Jesus. We recognize that we can now purify our hearts. और अंश अंश करके हम जब अपने हृदय अपने मनों का परिवर्तन करते हैं और जब पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करता है तो हम अपने उस सोच को बदल सकते हैं। And thereby God can enable us to have pure eyes. और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हमारे शुद्ध आंखें हो जाए। We may not become perfectly pure in one day. शायद हम एक दिन में पूरी तरीके से सिद्ध ना बने। But we see his image. We see that there is some progress I need to make in that direction. पर हम उसकी प्रतिमा को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि मुझे इस जगह में या इस क्षेत्र में विकास करना है। If I am continuously making progress, then I am in the right track. और अगर मैं हर समय कोई विकास कर रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ फिर मैं सही मार्ग पर हूँ। At one time, I used to think that doing some work is a great thing I am doing for someone. और एक समय में ऐसा सोचता था अगर मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। And then the Holy Spirit shows me the life of Jesus, where the last day he was sitting at the feet of his disciples and washing their feet.
और फिर पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह का जीवन दिखाता है कि उसके इस संसारिक जीवन के आखिरी दिन भी यीशु मसीह उसके शिष्यों के पैरों पर बैठकर उनके पैर को धो रहा था। And there we see the pride in us and we want to humble ourselves like him. और फिर हम अपने अंदर का घमंड देखते हैं और हम यीशु मसीह के तरह ही अपने आप को नम्र करना चाहते हैं। So we are not just transformed by just avoiding sin. और इसलिए हम सिर्फ पाप से बचकर बदलाव हमारे जीवन में नहीं आता। We want to get his same nature in us, the life of purity. हमको उसी के स्वभाव को हमारे अंदर पाना है, उसकी एक पवित्रता का जीवन हमारे अंदर पाना है। In 2 Corinthians 2:16 it says, therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. और दूसरा कुरिन्थ और 2 और 16 में लिखा है, which verse was it? 2:16, maybe 3:16, 4:16 maybe. Yes, 4:16। और दूसरा कुरिन्थी 4:16, और इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। So here it is talking about the inner life. और यहाँ अंदरूनी जीवन या अंदर के जीवन के विषय में लिखा है, Where Paul says that it is being renewed day by day. और जहाँ पौलुस कहता है कि दिन प्रतिदिन वो नया होता जाता है। So this is an exciting life where God wants us to live. और ये बहुत ही एक अच्छा जीवन है जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। And he wants us to be transformed into his image. और वो चाहता है कि हम उसी के प्रतिमा में बदल जाए। And we don't get discouraged because we see God's working in our life. और हम इसलिए निराश नहीं होते क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते हैं। In Luke, I just want to say about desiring and praying for the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की इच्छा रखना और उसके लिए प्रार्थना करने के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Jesus told a parable in Luke chapter 11, verse 5 to 13. और यीशु मसीह ने लूका उसके 11 और उसके 5 से 18 में एक दृष्टांत बताया। So there, Jesus mentioned about a man who came to his friend's house at midnight. और वहाँ यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसके पास रात में एक यात्री उसका मित्र आता है। So there, his friend came at midnight and he was hungry. और वो रात में उसका मित्र आता है और वो भूखा होता है। And he had nothing to offer his friend. और उसको अपने मित्र को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। So he went to his neighbor's house and started knocking at his door. और फिर वो अपने पड़ोसी के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। And there his friend from his neighbor says that I am already asleep, my children are sleeping, I cannot come and help you. और उसका पड़ोसी ये उत्तर देता है कि मैं अब तो सो गया हूँ, मेरे बच्चे भी सो गए हैं, मैं आकर तुझे कुछ नहीं दे सकता। But he kept on persisting and he kept on asking and finally he had to help that person. पर वो बार बार मांगते रहा, बार बार वो खटखटाते रहा, और इसलिए उस मित्र को उसकी सहायता करनी, उस पड़ोसी को सहायता करनी ही पड़ी। And in that way Jesus said, so I say to you in verse 9, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened. और इस रीति से यीशु मसीह ने कहा 9वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Jesus wants us to seek and ask and knock in this manner. और प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस प्रकार से मांगे, ढूंढे और खटखटाए। With real thirst and real longing till we receive, we will ask. एक सच्ची प्यास के साथ, एक सच्ची पुकार के साथ, जब तक हमें नहीं मिलता हम मांगते रहेंगे। In John chapter 7, verse 37 and 38, Jesus cried out and said, और यूहन्ना 7 उसके 37 और 38 वचन में यीशु मसीह ने पुकार कर इस बात को कहा, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। He who believes in me, as the scripture has said, from his innermost being will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Here the word uses innermost being. और यहाँ लिखा है हृदय से, इंग्लिश में लिखा है हृदय के सबसे अंदर के भाग से। So God is interested in the innermost being. और परमेश्वर हमारे जीवन के जो सबसे अंदर का भाग होता है उसमें वो दिलचस्पी रखता है। We should not seek Holy Spirit for just an experience.
और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की खोज सिर्फ एक अनुभव मात्र के लिए नहीं करनी है, or to show someone that I have been baptized, या किसी के सामने ये दिखावा करने या दिखाने के लिए कि हाँ मेरा बपतिस्मा हुआ है, or to show others some ministry I can do, or can I can help in ministry or some church work or something. या दूसरों के सामने कोई सेवा करने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि मैं कलीसिया में एक सेवकाई या सहायता कर सकता हूँ। But we want to please God in our inner life. That is the motivation, or that is the real desire in our hearts. पर हम परमेश्वर को हमारे अंदर के अंदरूनी जीवन में प्रसन्न करना चाहते हैं, यही हमारा इरादा होता है That God wants should be glorified with my life. कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा महिमा पाए। And one more thing which I want to remind, in Acts 2:38, Peter says, "Repent." एक और बात जिसका मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ वो है प्रेरितों उसके दूसरे अध्याय के 38 वचन में पतरस कहता है कि मन फिराओ। So without proper repentance, we cannot receive the Holy Spirit. और एक सही मन फिराव के बिना हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। That means I am ready to set right everything what God has showed me. इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिखाया है उन सारी चीजों को सही करने के लिए मैं तैयार हूँ। Any unrighteousness in money matters, I am ready to settle. पैसे के बारे में कोई भी अगर अधर्मिकता मेरे जीवन में है तो मैं उसको सीधा करने के लिए तैयार हूँ। If I have hurt someone, I am ready to apologize to that person. अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। If I have any hidden bitterness, I am ready to forgive that person. अगर मेरे मन के अंदर कोई छिपा हुआ कटुता है तो कड़वाहट है तो मैं उसको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to give up all known sin in my life. जो भी पाप मैं जानता हूँ उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। I am ready to turn from every sin in my life. मेरे जीवन के हर पाप से मैं पीछे मुड़ने के लिए तैयार हूँ। To get overcome that sin, I may take time. उस पाप पर जय पाने के लिए शायद मुझे समय लगे, But I am ready to turn from that. That means my mind is not looking in that direction, but I have turned from that sin. पर मैं उससे पीछे मुड़ने के लिए, अपना चेहरा वहां से मुड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इसका मतलब मेरा मन उस पाप के विषय में वैसा ही नहीं सोचता। And if we have done that, God will surely fill us. और अगर हमने ये किया है तो परमेश्वर हमें जरूर भरेगा। Because Jesus said, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कितनी और रूप से परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा उनको जो उसके लिए मांगते हैं। So let us repent, thirst, believe and ask. और इसलिए आइए हम मन फिराए, प्यास रखें, विश्वास करें और मांगे। And God will definitely fill us. और परमेश्वर जरूर हमें भरेगा। आमीन।